Good morning, students. Welcome again in our political science class of class 12. Today we will start chapter 5 of book 2, that is Challenges to and Restoration of the Congress System. Before starting new chapter, it is must to recapitulate the things we have studied earlier. After independence, Congress was the most popular party and won 3 consecutive elections and became the winning party for almost 15 years. Then we studied the India's external relations with its neighboring countries. Pakistan attacked to India 2 times in 1947-48 and in 1965. And China attacked in 1962. And thus, on the decade of 60s, India's economic condition almost went down. We lost our 2 popular leaders, Jawaharlal Nehru and Shastriji. Now the next event, what happened in our Indian politics, we will see in this chapter. So let's start. Challenge to political succession means now India has to face challenge of succession. Prime Minister Jawaharlal Nehru passed away in May 1964. He had been unwell for more than a year. This had generated a lot of speculation about the usual question of succession. 14 May 1964 जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई. पहले लगभग 1 साल से वो लगातार बीमार चल रहे थे और इस वजह से उनके सक्सेशन की, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि नेहरू के बिना तो इंडिया में क्या होगा ये समझ में ही नहीं आता था. After Nehru, who? It was the big question. But in a newly independent country like India, this situation gave rise to a more serious question. After Nehru, what? So, the important question was not after Nehru, who? But the question was, after Nehru, what? What will happen after Nehru? The second question arose from the serious doubt that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. केवल देश में ही नहीं, बाहर भी, वर्ल्ड में भी लोगों को ये लगता था कि क्या इंडिया नेहरू के बिना सर्वाइव कर पाएगा. इट वॉज फियर्ड दैट लाइक सो मेनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया टू वुड नॉट बी एबल टू मैनेज अ डेमोक्रेटिक सक्सेशन. सबको ये लगता था, पूरे वर्ल्ड को ये लगता था कि जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सर्वाइव नहीं कर पाई, इंडिया भी नहीं मैनेज कर पाएगा डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपने आप को. A failure to do so, it was feared
could lead to a political role for the army. और लोगों को ये लगता था कि अगर डेमोक्रेसी फेल हुई तो पॉलिटिकल रोल जो है वो उसमें आर्मी आगे आ जाएगी, आर्मी लीड करने लगेगी. Besides, there were doubts if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution. साथ ही इस बात को लेकर डाउट भी था कि न्यू लीडरशिप अगर आती है तो वो इतने सारे मल्टीपल क्राइसिस को हैंडल कर पाएगी या नहीं, उसका सल्यूशन ढूंढ पाएगी या नहीं. The 1960s were labeled as the dangerous decade. Dangerous decade? Why? Because 1960, the decade of 1960, watched so many events and our economy became disbalanced. So the 1960 was labeled as dangerous decade when unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional division, etc. could lead to a failure of democratic project or even the disintegration of the country. From Nehru to Shastri. Lal Bahadur Shastri's term was from 1904 to 1966. He became Prime Minister of India, participated in the freedom movement since 1930, became Minister in UP Cabinet, General Secretary of Congress, Minister in Union Cabinet from 1951 to 1956. When he resigned, taking responsibility for the railway accident, and later from 1957 to 1964, coined the famous slogan Jai Jawan, Jai Kisan. So we will see here from Nehru to Shastri. The ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong. जिस तरह से सक्सेशन नेहरू के बाद शास्त्री का हुआ, नेहरू के बाद शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, तो जितने भी क्रिटिक्स थे जो ये कहते थे कि अब इंडिया सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह पाएगा, तो उन सारे क्रिटिक्स को इस सक्सेशन ने गलत प्रूव कर दिया. When Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of the Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri. जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त के थे के कामराज. उन्होंने जब अपनी पार्टी के बीच में डिस्कशन किया, कंसल्ट किया, तो उन्होंने देखा कि सभी यूनानिमसली लाल बहादुर शास्त्री के लिए कंसेंसस था सबका. He was unanimously chosen as the leader of the Congress parliamentary party and thus became the country's next prime minister. Shastri was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who had been a minister in Nehru's cabinet for many years. Nehru had come to depend a lot on him in his last years. शास्त्री जी एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे नेहरू के कैबिनेट में, और जब नेहरू का आखिरी वक्त चल रहा था, लास्ट ईयर जब वो बहुत बीमार थे, तब बहुत सारा काम उनका शास्त्री जी ही देखते थे. He was known for his simplicity and his commitment to principles. शास्त्री जी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे और अपने सिद्धांतों पर खरे उतरने के लिए, अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने के लिए जाने जाते थे.
Earlier, he had resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility for a major railway accident. जब वो नेहरू कैबिनेट में थे और रेल मिनिस्टर थे और उस वक्त एक रेल एक्सीडेंट हुआ और बीइंग अ रेलवे मिनिस्टर शास्त्री जी ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन कर दिया. शास्त्री वॉज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर from 1964 to 1966, only 2 years. 1964 to 1966. During Shastri's brief prime ministership, the country faced 2 major challenges. 2 साल के छोटे से ही उनके कार्यकाल में ही कंट्री ने 2 major challenges फेस किए. While India was still recovering from the economic implications of the war with China, failed monsoon, drought, and serious food crisis presented a grave challenge. 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था और अभी हम उससे संभल ही रहे थे, उन सारी चीज़ों से उबर ही रहे थे कि उसी साल मॉनसून फेलियर की वजह से, ड्रॉट की वजह से फूड क्राइसिस इंडिया को फेस करना पड़ा. So food crisis was the great challenge before India. As discussed in the previous chapter, the country also faced a war with Pakistan in 1965, in 1962 with China, and in 1965 with Pakistan. Shastri's famous slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, symbolized the country's resolve to face both these challenges. शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया. जय जवान क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा सैनिकों के हाथ में थी. चाइना के बाद तुरंत अटैक किया पाकिस्तान ने 1965 में, और साथ ही साथ किसान जो फार्मर्स हैं इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि कंट्री में जो फूड क्राइसिस है उसको संभालने में वो फार्मर्स ही आगे आ सकते थे. शास्त्री's prime ministership came to an abrupt end on 10th January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. शास्त्री जी का जीवन जो है वो अचानक से ख़त्म हुआ 10th जनवरी 1966 में. 65 के वॉर के बाद एग्रीमेंट के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे, जो उस वक्त उज़्बेकिस्तान का कैपिटल था और यूएसएसआर में था. वहाँ उनकी डेथ हो गई. ही वॉज देयर टू डिस्कस द साइन एंड एग्रीमेंट विथ मोहम्मद अयूब खान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू एंड द वॉर. passed away, and in January 1966 Shastri ji also expired. Then from Shastri to Indira Gandhi. In this way, the Congress faced the challenge of political succession for the second time in 2 years. पहले तो नेहरू के बाद ही हो रहा था कि हु आफ्टर नेहरू, और 2 साल के बाद ही फिर से कांग्रेस के पास वही सक्सेशन का चैलेंज फिर से आ गया. दिस टाइम देयर वॉज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. मोरारजी देसाई had earlier served as cabinet minister of Bombay state, today's Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center. मोरारजी देसाई काफ़ी पावरफुल थे उस वक्त कांग्रेस में, और
नेहरू के कैबिनेट में वो सर्व भी कर चुके थे, बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और नेहरू के कैबिनेट में भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी, द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, had been Congress president in the past and had also been Union Minister for Information in the Shastri's cabinet. इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर शुरू ही हुआ था। वो उस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। नेहरू के कैबिनेट में इंफॉर्मेशन और शास्त्री जी के कैबिनेट में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में काम कर रही थी। दिस टाइम द सीनियर लीडर्स इन द पार्टी डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी, बट द डिसीजन वॉज नॉट यूनानिमस। और इस बार पार्टी के लीडर्स, नेहरू के बाद सबने यूनानिमसली शास्त्री जी को चुना था। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को चुना, लेकिन इस बार का जो ये चयन था ये यूनानिमसली नहीं था। द कंटेस्ट वॉज रिजॉल्व्ड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। कुछ लोग जो थे वो मोरारजी को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इंदिरा गांधी की बैकिंग कर रहे थे, और इसलिए जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाया तो सीक्रेट बैलेट पेपर को यूज़ किया गया। इंदिरा गांधी defeated Morarji Desai by securing the support of more than 2/3 of the party's MP. A peaceful transition of power, despite intense competition for leadership, was seen as a sign of maturity of India's democracy. मोरारजी देसाई बहुत पावरफुल थे और वो एक रिनाउंड लीडर भी थे, लेकिन इस बार बहुत सारे एमपीज़ ने इंदिरा गांधी की बैकिंग की, इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, और जब डिसीज़न नहीं लिया जा सका तो बैलेट पेपर के थ्रू टीम चूज़ किए गए, और इसमें इंदिरा गांधी ने 2/3 मेजॉरिटी से मोरारजी देसाई को हरा दिया और एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पावर का ट्रांजिशन हुआ। इंदिरा गांधी लीडर बनी और इंडिया की डेमोक्रेसी ने अपना मैच्योर फॉर्म दिखाया। इट टुक सम टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन। न्यू प्राइम मिनिस्टर को सेटल डाउन होने में अभी कुछ टाइम लगा। वाइल इंदिरा गांधी हैड बिन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग, शी हैड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री only for a short period. The senior Congress leader may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance. अब आपको समझ में आया होगा कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के पीछे रीज़न क्या था। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को ये सोचकर सपोर्ट किया कि इंदिरा गांधी अभी बहुत एक न्यू कमर हैं और पॉलिटिकल स्फेयर में वो इनएक्सपीरियंस हैं, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा सीनियर लीडर्स पर, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और उनका सपोर्ट, उनके गाइडेंस की ज़रूरत इंदिरा गांधी को पड़ेगी। ऐसा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स समझते थे, और इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था कि इंदिरा गांधी उनके अकॉर्डिंग चलेंगी, उनसे गाइडेंस लेके काम करेंगी। विदिन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, Indira Gandhi had to lead the party in a Lok Sabha election. एक ही साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा इलेक्शन फेस करना पड़ा।
Around this time, the economic situation in the country had further deteriorated, adding to her problems. और इन एक साल में भाई शास्त्री के समय से ही प्रॉब्लम तो चली आ रही थी, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, सिचुएशन और भी डिटोरिएट हुई, और फर्स्ट इलेक्शन जब इंदिरा गांधी को एक साल के बाद फेस करना पड़ा तो उस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा डिटोरिएटेड थी, जिससे कि इंदिरा गांधी की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी. Faced with these difficulties, she set out to gain control over the party and to demonstrate her leadership skill. इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी करना था और अपनी लीडरशिप स्किल भी दिखानी थी. We have seen how power transferred from Nehru to Shastri and then Shastri to Indira Gandhi. Indira Gandhi became the leader of Congress and she faced general election in 1967. What happened in this election? We will see in our next video. In our next class, we will discuss. Go through this chapter, read the book carefully, and you will find very interesting. And if there is any doubt, any query, contact me. I'm always there. Thank you and have a nice day.